Hello, my dear kids. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. My name is Vandana and we are doing SST Class 8. Here, this is your book, Time Travelers Unraveling History's Mysteries. Children, today we are going to do chapter number 4 of your geography and the name of the chapter is Agriculture. So, let's start with the chapter. Here you have to do this exercise. You have to define the following words. इन सारे words को define करना है. So write down the definition of these words here. The term agriculture is derived from the Latin word agri means field and culture means cultivation. So agriculture का meaning है agri plus culture. Agri means field and culture means cultivation. So दोनों को मिला के बन गया field cultivation which is agriculture. The earliest of human activities were hunting and gathering. So पहले लोग क्या करते थे? Hunting means जानवरों का शिकार और जो प्लांट प्रोडक्ट्स है उन्हें गैदर किया करते थे. तो ये दोनों एक्टिविटीज करते थे ह्यूमन बीइंग. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एज ह्यूमन बीइंग्स, डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एनेबलिंग देम टू हैव द मोर सेटल लाइफ. सो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ जिसके बाद जो ह्यूमंस ने क्या किया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स उन्हें पालना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद उनकी जो लाइफ है और ज्यादा सेटल्ड रहने लगी. परमानेंट human settlements such as the first town or city. So अब जब humans क्या करने लगे, permanent human settlement उन्हें मिलने लगा, जैसे कि उन्होंने town बना दिया या city बना दिया. Came into existence when humans learned to domesticate animals and cultivate plants. So जब humans ने ये दोनों चीजें सीख ली तो उनकी life और भी ज्यादा easy हो गई थी. Origin of agriculture. The earliest evidence of farming lies in West Asia, where around 8,000 years ago, wheat and barley were first grown in fields entirely by hand. So पहले जो है कुछ evidences हैं agriculture के जो बताते हैं कि वेस्ट एशिया में 8,000 years ago यहाँ पे wheat और barley जो है सबसे पहले grow किया जाता था पूरे लैंड में एंटायरली बाय हैंड, हाथ से ही ग्रो किया जाता था. इन मेक्सिको मेज वाज ग्रोन 6,500 ईयर अगो. मेक्सिको में इतने साल पहले ग्रो किया जाता था. एंड इन चाइना राइस वाज कल्टीवेटेड अराउंड 5,000 ईयर्स अगो. और चाइना में राइस को कल्टीवेट किया गया था इतने साल पहले. इन एंशिएंट इजिप्ट वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम द रिवर नाइल एंड फर्टाइल एलुवियल सॉइल enables the forest farmers to produce large quantity of food. So ancient Egypt की बात जब की जाती है तो यहाँ पे जो पानी था इरिगेशन के लिए वो रिवर नाइल से आया करता था और जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल था ये फार्मर्स को हेल्प करता था ताकि वो लार्ज अमाउंट में फूड को ग्रो कर सके. सो ये सारी कंडीशंस जो है ह्यूमंस के साथ है जिसके बाद वो इजीली जो है एग्रीकल्चर को कैरी ऑन कर सकते थे. Agriculture is almost the oldest economic activity of humans. So humans की जो भी economic activities है उसमें से agriculture जो सबसे ज्यादा oldest है. Human activities that generate income are called economic activities. और वो human activities जो income को generate करती है उन्हें economic activities कहा जाता है. Agriculture is a primary activity और agriculture जो है वो एक primary activity है. It made it possible for humans to have a sedentary lifestyle. So यहाँ पे जो humans है उनकी जो lifestyle है वो sedentary, उनकी lifestyle को sedentary बनाता है. And permanent settlements. It has been the key to the development of human civilization. और ये जो है ये key है human civilization का जो development है उसके लिए. For thousands of years wherever agriculture flourished, human civilization flourished. So हजारों सालों की जब बात की जाती है तो जहाँ कहीं भी एग्रीकल्चर जो है बढ़ा,
ह्यूमन सिविलाइजेशन भी बढ़ता चला गया। की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, कौन कौन से फैक्टर्स है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं? सो हियर द फर्स्ट वन इज द क्लाइमेट. सो क्लाइमेट इज द मेन फैक्टर and it is the dominant factor that influences agriculture. Plants thrive best under certain temperature conditions, which also determines their growth period. So plants जो है ग्रो करने के लिए उन्हें एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, एक प्रॉपर क्लाइमेट चाहिए, जिसके बाद ही उनका जो ग्रोथ है वो बढ़ता है. The annual and seasonal distribution of rainfall determines the availability of water supply to plants and the active growth period of crops. So किस जगह पे कितना रेनफॉल होता है उसके अकॉर्डिंग ही डिपेंड करते हैं बाकी फैक्टर्स कि जो है कितना ग्रोथ होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे उस जगह. So climate is the main cause here. Now the next is relief. Though the northern parts of India lies in the subtropical zone. So यहाँ जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वो सब ट्रॉपिकल जोन में है. इट प्रोड्यूसेस टेम्परेट क्रॉप्स. यहाँ पे टेम्परेट क्रॉप्स होते हैं जैसे कि बिकॉज ऑफ द हिमालयाज विच ऑफर टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर ग्रोथ. हिमालय की वजह से यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो टेम्परेट होता है, जिसकी वजह से टेम्परेट क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करते हैं. द कूल टेम्परेचर ऑफ द हिमालयाज अलाउ द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट along the terrace slopes. So जो कूल टेम्परेचर है हिमालयस के उसकी वजह से ही यहाँ पे व्हीट कल्टीवेशन इजीली हो सकता है. टेम्परेट फ्रूट्स सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, पीचेस, पियर्स एक्सेट्रा आल्सो ग्रो हियर. सो ये सारे भी यहाँ पे ग्रो करते हैं. द अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस एंड स्लोप ऑफ द लैंड आल्सो इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ क्रॉप दैट ग्रोज हियर. सो उस पर्टिकुलर जगह का प्रॉपर अल्टीट्यूड क्या है और जो स्लोप है उस लैंड का, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो बताता है कि जो वहां पे क्रॉप है वो कैसा होगा. प्लांट्स लाइक टी रिक्वायर्स अ कूल क्लाइमेट. जो ट्रीज हैं जैसे कि जैसे टी प्लांट है उसे जो है कूल क्लाइमेट की जरूरत है एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल, और इनका जो सॉइल होता है वो काफी ज्यादा ड्रेन होना चाहिए. Therefore, the hilly slopes are ideally suitable for their cultivation. इसलिए जो hilly slopes होते हैं, hill slopes होते हैं, यहाँ पे ये easily grow किया जा सकता है. On the other hand, rice grows on plains and needs a hot, wet climate. दूसरे तरफ देखा जाए तो जो राइस है वो यहाँ पे ग्रो करता है इन प्लेन्स पे और इन्हें जो है हॉट वेट क्लाइमेट की जरूरत होती है. Next factor is the soil. Different crops require different type of soil for their growth. So हर crop को एक अलग तरीके के soil की जरूरत होती है अपने growth के लिए. For example, cotton requires black soil या alluvial soil. Cotton को black या फिर alluvial soil चाहिए, whereas rice requires clay soil that retains water. So rice को चाहिए clay soil जिसमें पानी इकट्ठा रह सके. ह्यूमन मेड फैक्टर्स. कौन कौन से ह्यूमन मेड फैक्टर्स हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑल्सो ऑल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड इवन द क्रॉप्स एंड एनिमल्स दैट आर ग्रोन एंड रेज्ड. सो यहाँ पे जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है ह्यूमन मेड फैक्टर. और क्या है वो? जो सोशल, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल फैक्टर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इन्फ्लुएंसिंग द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. किस तरीके का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा है एंड इवन द क्रॉप्स एंड एनिमल्स दैट आर ग्रोन हियर. द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज प्राइमरली कंसंट्रेटेड इन दीज रीजन्स वेयर द की फैक्टर फॉर सुटेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ एक्सिस्ट. सो ये जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं वो प्राइमरीली कॉन्सेंट्रेटेड है इन जगहों पे जहां पे ये की फैक्टर्स सूटेबल हैं एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए. नाउ टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. फार्मिंग प्रैक्टिसेस may be grouped according to various methods of farming and according to the scale at which they are carried out. So farming practices किए जाते हैं जगहों पे. Here the first is subsistence
एग्रीकल्चर। पहला है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर involves small scale farming activities which provide sufficient food for the farmers and their families. So जो subsistent agriculture है इसमें जो है small scale farming activities होती हैं जिसमें जो है sufficient food provide किया जाता है farmers के लिए और उनकी family के लिए। The little surplus produce is sold or exchanged for something else. लेकिन जो थोड़ा बहुत ये प्रोड्यूस करते हैं उसे या तो ये बेच देते हैं या कुछ और लेने के लिए एक्सचेंज कर देते हैं। Subsistence agriculture was first practiced in the Nile, Euphrates and Indus Valley. So इन जगह पे पहली बार ये subsistence agriculture practice किया गया था। Subsistence agriculture had been practiced all across the world until recently, but now commercial agriculture is being practiced on a large scale. So जो subsequent subsistence agriculture था वो पूरे वर्ल्ड में हर जगह प्रैक्टिस किया गया until recently, अभी तक। लेकिन अब जो है यहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है on a large scale, काफी ज्यादा बड़े स्केल पे, and it's carried out in many parts of the world. और जो वर्ल्ड के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे ये कैरी आउट किया जाता है। Different types of subsistence agriculture methods are below. So बहुत तरीके के agriculture methods हैं that are followed here, and they are shifting cultivation and slash and burn. Shifting cultivation है इसमें से। Shifting cultivation is a primitive form of agriculture and it is practiced mostly by tribal people living in hilly or forested region. So ऐसे लोग जो hilly या फिर forested region में रहते हैं वो ही tribal लोग इस तरह की cultivation को करते हैं। In this type of agriculture, a plot of land is cleaned and cultivated for a short period. When the fertility of the plot is exhausted, it is abandoned and the cultivator moves on to a new plot. Shifting agriculture includes the slash and burn method. So यहाँ पे children जिस shifting cultivation की बात हो रही है, यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं जो हिली एरियाज में रहते हैं वो इसे प्रैक्टिस करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी एक लैंड को लेते हैं, वहां पे वो कल्टीवेशन करते हैं, जब तक उसमें जो है क्रॉप अच्छे से ग्रो होता है तब तक वो कल्टीवेशन करते हैं। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो जो प्लॉट है उसे क्लियर कर दिया जाता है और जब उस प्लॉट की फर्टिलिटी जो है खत्म हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, तो ऐसे लैंड को वो लोग जो है वहां से छोड़ देते हैं और नए प्लॉट पे चले जाते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इंक्लूड्स द स्लैश एंड बर्न मेथड। और जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है इसमें जो स्लैश और एंड बर्न मेथड है वो भी ये फॉलो करते हैं। हियर यू कैन सी द फार्मर्स आर परफॉर्मिंग द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक है, तो ये क्या करते हैं, लैंड जिस लैंड पे ये कल्टीवेशन करते हैं उस पर फिर वो स्मोक लगा के मीन्स आग लगा देते हैं और उस लैंड को क्लीन कर देते हैं। Which the standing vegetation is cut down and burned to create a plot and the ashes are used to enrich the soil. So ये जो है अब जो है इन प्लॉट्स को जो है क्लीन करने के लिए इसे जला दिया जाता है और इसके जो भी एशेज रहते हैं वो इसके जो सॉइल है उसे जो है एनरिच करते हैं। This primitive agricultural technique is still practiced in Africa, South America, Central America, Mexico and the southern East Asian countries like Indonesia, Thailand, Philippines, Vietnam and Cambodia. So इन सारी जगहों पे अभी भी ये कल्टीवेशन होता है। Main crops grown here are maize, cassava, sweet potato, etc. So ये सारे कुछ crops जो यहाँ पे grow किए जाते हैं, which are consumed locally and there is hardly any surplus for sale. So ये जो चीजें हैं ये लोकली लोग जो है खा लेते हैं, जो भी चीजें ये ग्रो करते हैं उसे ही ये खुद कंज्यूम कर जाते हैं और there is hardly any surplus for sale, और सेल करने के लिए इनके पास मुश्किल से ही कुछ बचता है।
नेक्स्ट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कन्फाइंड टू डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो जो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड के ये फार्मिंग वहीं पे की जाती है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? फार्म्स आर स्मॉल एंड इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। सो यहाँ पे जो फार्म है वो स्मॉल होते हैं और यहाँ पे जो कल्टीवेशन है वो इंटेंसिव होती है। इट इज प्रैक्टिस इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज वेयर कल्टिवेबल लैंड इज स्केर्स। इसे जो प्रैक्टिस किया जाता है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पे जो लैंड है वो काफी कम होता है, स्केर्स होता है। यील्ड पर एकड़ इज हाई। अब यहाँ पे जो यील्ड होता है वो काफी ज्यादा होता है, इवन दो टोटल प्रोडक्शन पर लेबर इज लो। सो हर लेबर के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्शन देखी जाए तो काफी लो होता है। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स आर अप्लाइड इन दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर सच एज द यूज ऑफ फार्म मैन्यूर। सो यहाँ पे ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स को अप्लाई किया जाता है जैसे कि फार्म मैन्यूर। About 10 million hectares of tribal land stretched across 16 states, estimated to be under shifting cultivation in India. So 10 million hectare जो है ट्राइबल लैंड है जो कल्टीवेशन के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है अंडर है। कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब क्या है कमर्शियल एग्रीकल्चर? Unlike intensive subsistence agriculture, commercial agriculture practices involve cultivation in a single crop over large area in a human farm, covering thousands of acres. So इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है कई एकड़ एरिया तक। These large extensive farmers are totally mechanized in their operation and the produce is high and is surplus for sale in large market. और यहाँ पे जो भी चीजें ग्रो की जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा अमाउंट में ग्रो की जाते हैं तो इजिली जो है इसे मार्केट में भी सेल किया जा सकता है। इतना ज्यादा प्रोडक्ट होता है कि मार्केट में भी सेल किया जा सकता है। दो यील्ड पर एकड़ इज स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे जो यील्ड है वो पर एकड़ स्मॉल होता है, टोटल प्रोडक्शन इज हाई, तो इसलिए यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है। The farmer carries out all agricultural activities with the help of modern machineries. जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं उसे मॉडर्न मशीनरी से आगे बढ़ाते हैं, सच एज कंबाइन हार्वेस्ट। क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस। सो यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए। प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्रॉप्स सच एज टी, कॉफी, cacao, oil palm and rubber are grown on large states called plantation. So plantation एग्रीकल्चर में ये सारे प्रोडक्ट जो है ग्रो किए जाते हैं बड़े बड़े एरिया में जिसे प्लांटेशन कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। और ऐसे एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा लेबर और कैपिटल दोनों की जरूरत होती है। प्लांटेशंस आर स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज एंड हैव हाउसिंग एंड फैसिलिटीज फॉर द वर्कर्स। सो जो प्लांटेशन है वो स्प्रेड करता है काफी ज्यादा बड़े एरिया में और इसमें होती है हाउसिंग और दूसरी फैसिलिटीज है जो वर्कर्स को यहाँ पे मिलती है। यूजुअली सिंगल क्रॉप इज ग्रोन। यहाँ पे जो है एक सिंगल क्रॉप ही ग्रो किया था एक टाइम पे। वर्क ऑन द प्लांटेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एज इन अ फैक्ट्री। और जो वर्क है प्लांटेशन पे वो उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है जैसे कि किसी फैक्ट्री में। एज द क्रॉप इज प्रोसेस्ड ऑलमोस्ट होली ऑन द प्लांटेशन इटसेल्फ। जैसे कि क्रॉप को प्रोसेस किया जाता है ऑलमोस्ट होली ऑन अ प्लांटेशन। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? ऑल एक्टिविटीज इन दिस टाइप ऑफ agriculture are carried out on the lines of a factory having similar infrastructure. So जो भी activities हैं इस type in this type of agriculture, जो इस agriculture में जो भी तरीके की activities हैं are carried out in the line of factory। में जो carry on किया जाता है जो line of factory है having similar infrastructure, modern techniques and operation। So ऐसी जगहों पे इन्हें carry on किया जाता है जहाँ पे सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मॉडर्न टेक्निक्स होना चाहिए और फिर ऑपरेशंस होना चाहिए।
It requires large investment of money and managerial and technical support. अब यहाँ पे काफी ज्यादा मनी के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, मैनेजरियल सपोर्ट होना चाहिए और टेक्निकल सपोर्ट भी होना चाहिए. चीप अनस्किल्ड लेबर्स फॉर प्लांटेशन आर सप्लाइड बाय द लोकल पीपल. सो जो लोकल लोग होते हैं वो चीप अनस्किल्ड लेबर को यहाँ पे भेज देते हैं प्लांटेशन के लिए. While highly prized technical and scientific assistance comes for developed countries. और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे जो है जो लोग प्लांटेशन करते हैं वहाँ पे हाई प्राइस टेक्निकल और साइंटिफिक असिस्टेंस आते हैं. चीप मेजर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिंक दीज स्टेट्स with factories and markets for the export of products. So जो चीफ मीन्स है ट्रांसपोर्ट के, चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिंक दिस स्टेट, ये चीफ मीन्स है ट्रांसपोर्ट के वो इन स्टेट से लिंक अप हैं विथ फैक्ट्रीज एंड मार्केट्स फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए ये यहाँ से लिंक्ड अप है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन. अब कमर्शियल ग्रेन क्या है? The kind of farming is practiced in the interior semi-arid regions of the mid-latitudes. So ये जो farming है इसे जो practice किया जाता है interior semi-arid regions में जो mid-latitude में है, in temperate and temperate grassland. These areas include the prairies of North America. ये जो एरिया है यहाँ पे प्रेरीज हैं जो नॉर्थ अमेरिका की हैं, पंपास हैं जो अर्जेंटीना के हैं, स्टेपी जो यूरेशिया के हैं, वेल्स जो साउथ अफ्रीका के हैं एंड कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ नॉर्थ न्यूजीलैंड, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. सो ये सारे जो है एरियाज हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? Wheat is a main crop that is grown extensively in such farms. So ऐसे farms में wheat को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाता है. Yield per acre is low though total production per unit of labor is high. So यहाँ पे yield जो है काफी ज़्यादा लो होता है एकड़ के अकॉर्डिंग, लेकिन जो unit of labor है वो बहुत ज़्यादा high होती है. All farming activities from plowing to harvesting are fully mechanized. So, जो भी तरीके की फार्मिंग एक्टिविटीज हैं उसे जो है चाहे प्लोइंग की बात हो चाहे हार्वेस्टिंग की, सब कुछ मैकेनाइज है. द फार्म्स आर वेरी लार्ज यूजुअली कवरिंग हंड्रेड्स ऑफ एकड़. और ये जो फार्म्स हैं ये काफी ज्यादा लार्ज हैं जो हंड्रेड्स ऑफ एकड़ को कवर करते हैं. दीज फार्म्स आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ लो पॉपुलेशन. और जो फार्म्स हैं ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे काफी कम पॉपुलेशन होता है. Mixed farming. Farming which involves the cultivation of crops and rearing of animals on the same farm is called mixed farming. So farming जो होता है इन जगहों पे जहाँ पे crops को cultivate किया जाता है, animals को rear किया जाता है, तो ऐसे farming को हम mixed farming कहते हैं. Major crops include wheat, barley, oats, ragi, maize and root crops. Fodder crops are important components of mixed farming. So जो fodder crop होता है वो भी यहाँ पे ग्रो किया था और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मिक्स फार्मिंग का. Animals reared on these farms include cattle, pigs, sheep and poultry. So यहाँ पे एनिमल्स को भी यहाँ पे rear किया जाता है इन फार्म्स में, जो इंक्लूड करते हैं कैटल्स को, पिग्स को, शीप्स को और पोल्ट्री को. Now India is the second largest producer of fruits and vegetables in the world. So India जो है वो second largest producer है fruits vegetables का पूरे world में and ranks first in the production of bananas, mangoes, limes, lemons, papayas and okra. So ये जो है ये सारी चीजें यहाँ पे ग्रो की जाती हैं. Now what are the characteristic features of mixed farming? Farmers are highly skilled in agriculture. Expertise is used in these farms. So इन जगहों पे इस तरीके की फार्मिंग में जो स्किल फार्मर्स यूज किए जाते हैं और जो एग्रीकल्चर एक्सपर्टाइज है वो भी यूज किए जाते हैं इन फार्म्स में.
इट रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर मशीनरी। यहाँ पे मशीनरी के लिए लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, बिल्डिंग्स की जरूरत होती है, मशीनरी के लिए, बिल्डिंग के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ग्रीन मैन्योर आर यूज्ड ऑन द फार्म्स टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। सो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स और ग्रीन मैन्योर दोनों का यूज किया जाता है। मिक्स फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। सो ये जो मिक्स फार्मिंग है ऐसे कंट्रीज में प्रैक्टिस किया जाता है। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। सो इन सब जगहों पे मिक्स फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। नाउ व्हाट इज डेयरी फार्मिंग? कैटल provides us with milk and we use this milk to make various dairy products. सो कैटल को हम यूज करते हैं मिल्क और उससे बने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। नियरली ऑल कमर्शियल मिल्क प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम डेयरी फार्म्स। सो जो भी कमर्शियल मिल्क प्रोडक्शन है वो डेयरी फार्म से ही आता है। एंड द मेन रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन्वॉल्व्स द कैटल फार्मिंग, इन्वॉल्व्ड इन कैटल फार्मिंग आर यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। सो कैटल फार्मिंग में जो जगह यहाँ पे इन्वॉल्व है उनके नेम्स यहाँ पे लिखे हैं। ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डेयरी फार्मिंग। यू कैन सी ऑल द एनिमल्स आर केप्ट इन देयर शेल्टर एंड देयर फार्मिंग इज डन। नाउ व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? Horticulture is a specialized type of farming that lays emphasis on the growth of high value crops such as vegetables. So जो हॉर्टिकल्चर है वो स्पेशल टाइप की फार्मिंग है जो जिसका एम्फसाइज होता है ग्रो करने में, हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करने में ये हेल्पफुल होता है। सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स which are solid and thickly populated urban areas, जो solid होते हैं और thickly populated होते हैं urban areas में। It is largely practiced in North and West, North-West Europe। ये North-West Europe है, यहाँ पे काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। North-East USA यहाँ पे भी प्रैक्टिस किया जाता है। And the Mediterranean regions, और Mediterranean region है वहाँ पे भी प्रैक्टिस किया जाता है। The Netherlands is famous for the cultivation of flowers and horticulture crops. So ये जो नीदरलैंड है वो काफी ज्यादा फेमस है फ्लावर्स की कल्टीवेशन के लिए और क्रॉप्स के हॉर्टिकल्चर के लिए। Now nomadic herding. Nomadic herding is a system of raising animals by allowing them to graze on a natural vegetation. So nomadic herding क्या होता है? एनिमल्स को छोड़ दिया जाता है ग्रेज करने के लिए नेचुरल वेजिटेशन पे, and the herders do not grow any fodder but move from place to place in search of pasture. लेकिन जो herders होते हैं वो खुद का इन एनिमल्स का फॉडर ग्रो नहीं करते हैं, बल्कि वो इन एनिमल्स को ले जाते हैं प्लेस टू प्लेस जहाँ पे ये अपने पास्चर को सर्च करते हैं। As there is no investment on good breeds of animals or good quality fodder, yields of milk and meat is usually low. सो क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ना तो इन्हें गुड ब्रीड चाहिए एनिमल की, ना ये गुड क्वालिटी का फॉडर जो है प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो मिल्क इन्हें मिलता है वो उतना ज्यादा हाई क्वालिटी का नहीं होता है, वो काफी ज्यादा लो होता है, काफी कम मिल्क प्रोड्यूस करते हैं ऐसे एनिमल्स। बीइंग जस्ट इनफ टू मीट द हर्ड्स ओन रिक्वायरमेंट, जिससे जो ये हर्ड्स अपनी खुद की रिक्वायरमेंट ही पूरी कर पाते हैं। The money for buying other necessities often come from the sale of items made from the skin, wool or bone of animals. So इनके पास जो पैसे आते हैं वो इन एनिमल्स का स्किन, वूल या फिर बोन्स को बेच के आते हैं। The animals raised include cattle, sheep, goat, camel and yak. So इन तरीके के एनिमल्स को ही रेज करते हैं। Cooperative farming. In this type of farming, a group of farmers voluntarily pool their land and resources in order to form a cooperative society. So, इस तरीके की जो फार्मिंग है, इसमें जो फार्मर्स हैं वो एक ग्रुप ऑफ लैंड को यूज करते हैं और
एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। कोऑपरेटिव फार्म्स हेल्प पीपल टू अटेन लोन एंड बाय एंड हायर मशीनरी। सो ये जो कोऑपरेटिव फार्म्स हैं ये लोगों को हेल्प करते हैं ताकि वो लोन उन्हें मिल सके और वो हायर कर सके मशीनरीज को, गुड क्वालिटी सीड्स को वो ले सके एंड फर्टिलाइजर्स को भी खरीद सके। दे प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये जो है फार्म्स ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं एट चीपर रेट्स एंड सेल देम एट प्रॉफिटेबल रेट्स। ये जो भी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं वो काफी सस्ते दामों पे ये जो भी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं वो काफी सस्ते दामों पे खरीदते हैं और लेकिन जब इसे बेचते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉफिट लेके बेचते हैं। सच फार्म्स आर वाइडली फाउंड इन यूरोपियन कंट्रीज। ऐसे जो फार्म्स हैं ये यूरोपियन कंट्रीज में ही मिलते हैं, सच एज डेनमार्क, द नीदरलैंड्स, बेल्जियम, इटली एक्सेट्रा। सो इन जगहों पे मिलते हैं। एंड इन इंडिया कोऑपरेटिव फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन तमिलनाडु। लेकिन इंडिया जो है यहाँ पे ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है ये तमिलनाडु में की जाती है। अमूल इनिशिएटेड द वाइल्ड रेवोल्यूशन। सो अमूल ने व्हाइट रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था, which made India the largest producer of milk and milk products। जिसके बाद इंडिया जो है मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया in the whole world and it is almost the world's largest वेजिटेरियन चीज ब्रांड और ये वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट वेजिटेरियन चीज ब्रांड है उसमें से एक है। व्हाट इज कलेक्टिव फार्मिंग? कलेक्टिव फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज कम्युनल फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग को कम्युनल फार्मिंग भी कहा जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन it is a type of agricultural production in which the holdings of many farmers are operated as a joint enterprises। So ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ये इसमें जो है it consists of holding of many farmers are operated as a joint enterprise। काफी सारे फार्मर्स इसमें जुड़े हैं जो एक जॉइंट एंटरप्राइज की तरह वर्क करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन member owners engage jointly in farming activities। So इस तरीके की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो मेंबर होते हैं या जो ओनर्स होते हैं वो जॉइंटली जो है फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। द कलेक्टिव फार्म्स आर रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन ओनरशिप। और ये जो कलेक्टिव फार्म्स हैं ये कॉमन ओनरशिप के प्रिंसिपल पे ही चलते हैं ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑन पूलिंग ऑफ इनकम एंड लेबर। और ये जो भी इनकम होती है या जो लेबर होता है उन सबको पूल कर लेते हैं, बांट लेते हैं आपस में। व्हाट इज विटिकल्चर? दिस एक्टिविटी इज प्रैक्टिस इन रेंज हैविंग मेडिटेरियन क्लाइमेट। सो ये जो विटिकल्चर है ये ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे जो क्लाइमेट है काफी ज्यादा मेडिटेरियन क्लाइमेट में होता है। एंड द एक्सटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स इन द वाइनयार्ड फॉर द प्रोडक्शन of wine is called viticulture। जो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन होता है ग्रेप्स का वाइनयार्ड्स में वो जो है होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन। यहाँ पे जो ग्रेप्स को ग्रो किया जाता है वाइन प्रोडक्शन के लिए एंड दिस इज कॉल्ड विटिकल्चर। इसे विटिकल्चर कहा जाता है। हियर यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ वाइनयार्ड। सो नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर। Here, the first question is from where do we get the earlier evidence of crop cultivation? So, crop cultivation का जो earlier evidence है वो हमें कहाँ से मिलता है? This you have to write here. Name the factors that influence the type of agriculture practice in a place. So, कौन-कौन से factors हैं जो influence करते हैं agricultural practices को? What is shifting agriculture? Shifting agriculture क्या है? When the farmers shift from one place to another and they use a particular land for a long time, and when the fertility of that land goes off, the farmers move on to a new land and there they start farming. This is called shifting agriculture. You can include some more points here. Give two characteristic features of agriculture, plantation agriculture. So plantation agriculture के दो features आपको बताने हैं। Give two important features of mixed farming. Mixed farming के दो features बताने हैं
Write a note on the commercial grain cultivation. So commercial grain cultivation क्या है? You have to write a note on that. How is plantation agriculture useful? Plantation agriculture जो है कैसे useful है? This you have to write. Give its characteristic feature. उसके क्या क्या characteristic features हैं? Explain the origin of agriculture. जो agriculture है उसकी क्या origin है? ये लिखना है आपको. Differentiate between intensive and extensive agriculture. Intensive और extensive agriculture के बीच में क्या क्या difference है? That you have to write. Now differentiate between corporate and collective farm. Corporate और collective farming क्या होता है? इनके बीच में difference आपको लिखना है. So children, I hope that you have understood the chapter, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay elated.